شہرنامے میں خوش آمدید۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی قیادت میں گزشتہ ماہ محکمہ زراعت کے اعلیٰ سطح وفد نے چین کا دورہ کیا۔ وزیر زراعت پنجاب کی خصوصی دعوت پر چین کے اعلیٰ سطحی وفد کی لاہور آمد۔ چین کے وفد کی سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کے سربراہی میں محکمہ زراعت کے حکام کے ساتھ لاہور کے مقامی ہوٹل میں اہم ملاقات ہوئی۔ چینی وفد کی قیادت سنیم سیکھو نے کی۔ افتخار علی سہو کا کہنا تھا کہ محکمہ زراعت اور چینی کمپنیوں کے مابین تشکیل کیے گئے اور ورکنگ گروپس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ دورہ چین کے دوران 5 اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ کپاس کی بحالی اور بیج کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی مفاہمتی یادداشت کا حصہ ہے۔ آپ کو بتائیں گے آسیان کے رکن ممالک کی سینٹرل پولیس آفس آمد ہوئی۔ آسیان کانفرنس کے شرکاء نے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات کی۔ آسیان کانفرنس کے شرکاء کو پنجاب پولیس کے جدید انفراسٹرکچر، کرائم کنٹرول، سروس ڈیلیوری، اصلاحات اور درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا گیا۔ آسیان کانفرنس کے شرکاء نے پنجاب پولیس میوزیم، شہداء غازی سمیت سینٹرل پولیس آفس کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ ایم ڈی سیف سینٹر اتھارٹی حسن یونس نے آئی جی پنجاب کو ادارے کی طرف خصوصی شیلڈ پیش کی۔ آئی جی پنجاب نے کہا آسیان رکن ممالک اور پنجاب پولیس کے درمیان سیکیورٹی اینڈ سیفٹی امور میں تعاون کو مزید فروغ حاصل ہوا ہے۔ آسیان کانفرنس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ پولیسنگ، سمارٹ سرویلنس، ٹریفک مینجمنٹ پر خصوصی سیشنز کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اور اب خبر شامل کریں گے سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے۔ ڈی ایس پی لیگل تنویر امجد کی پروموشن کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی پنجاب کو ریلیف کی ہدایت دی۔ شہید ہیڈ کانسٹیبل محمد رؤف کی اہلیہ کی بیٹے کے ٹرانسفر کی درخواست پر اے آئی جی ایڈمن اینڈ سیکیورٹی کو ریلیف کی ہدایت دی گئی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈسپلن، ایڈمن، پروموشن، ویلفیئر سے متعلقہ دیگر درخواستوں پر بھی احکامات جاری کیے۔ انویسٹیگیشن پولیس تھانہ گجر پورہ اور نامعلوم ملزمان کے درمیان علاقہ تھانہ باغبان پورہ میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ دہشت گردی کے مقدمے میں ملوث انتہائی خطرناک ملزم غزر لودھی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ گجر پورہ انویسٹیگیشن پولیس ٹیم ملزم کو ریمانڈ پر برآمدگی کا بارودی مواد کے لیے علاقہ تھانہ غازی آباد لے جا رہی تھی۔ نامعلوم ملزمان نے زیر حراست ساتھی کو چھڑوانے کے لیے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ ملزم کے اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ملزم غزر لودھی شدید زخمی ہو گیا۔ ملزم کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا جو کہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ ہلاک ملزم غزر لودھی پولیس ملزمان کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے، خودکش جیکٹ رکھنے اور دیگر رابری کے مقدمات میں ملوث تھا۔ قبل ازیں ملزم غزر لودھی سے خودکش جیکٹ بھی برآمد ہوئی۔ پولیس ذرائع اور اب خبر شامل کریں گے لطیف آباد سے۔ لطیف آباد نمبر 10 کا قدیمی قبرستان کئی دنوں سے سیوریج کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ قبرستان اور اس کے اطراف کی سڑکوں پر سیوریج کا گندا پانی جمع ہے، جس کے باعث زائرین کو اپنے پیاروں کی قبروں تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ حیدرآباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شاہزیب شیخ۔ میئر حیدرآباد کے بڑے بڑے دعووں کے برعکس شہر کے تمام قبرستان اور ان کی ارد گرد کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور سیوریج کا نظام درم بھرم ہونے سے گندے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک لطیف آباد نمبر 10 کا قدیمی قبرستان بھی شامل ہے۔ قبرستان کے اندر جو ہے بارش ہو جائے یا کچھ بات ہو جائے تو میت تو لے ہی نہیں سکتے، وہ بالکل روڈ کچا ہے اور مٹی میں گب میں بارشوں میں، اور ابھی بھی حال یہ دیکھیں آپ ادھر کہ پانی بھرا ہوا، میت لے جانے میں اتنی پریشانی ہو رہی ہے اور جگہ جگہ کچرے، جگہ جگہ راستے رکے ہوئے، کوئی پرسان حال نہیں ہے یہاں پر۔ لہٰذا میں میئر شورو صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ قبرستانوں کی حالت دیکھیں، آئیں ذرا ادھر وزٹ کریں، چیئرمینوں کو بھیجیں
ताकि उन्हें पता चले कि क्या हाल है। ज़ायरीन का कहना है कि वो अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए आते हैं तो कब्रें सीवरेज के गंदे पानी में डूबी हुई होती हैं और उन्हें मजबूरी के आलम में इसी पानी में खड़े होकर फातिहा ख्वानी करनी पड़ती है। ये कितना गंदगी वाला पानी भर पड़ा है, यहाँ पर मैयत आती है तो मैयत को ले जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पहली जिम्मेदारी तो यहाँ के नाए नाजिम की है, यहाँ के इस मसले को सोल्व करें। फिर MNMPA भी यहीं आके देखते कि यहाँ क्या सूरत हाल है। हमें बड़ी परेशानी है, हमारे को मैयत ले आने में बड़ी परेशानी होती है, कब्रिस्तान आने जाने में बड़ी परेशानी होती है और पीछे यहाँ की जो आबादी है उसको भी बड़ी परेशानी होती है। बदबू है, फिर जरासीम पैदा हो रहे हैं, मच्छर पैदा, डेंगू जैसी वबा यहाँ फैल रही है ये गंदगी की वजह से। इलाका मकीनों का कहना है कि कब्रिस्तान में सफाई, रोशनी और सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं। बारहा शिकायत के बावजूद इंतजामिया भी कोई एक्शन नहीं ले रही। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ शाहदेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। अब आपको बताएंगे वजीर आला पंजाब की खुसूसी मुहिम ग्रीन पंजाब के तहत हारूनाबाद में शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोखर ने बल्दिया मुलाजमीन और स्कूल के बच्चों के हमरा मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाकर इस मुहिम का इफ्तिताह किया। आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फिकार अहमद भून की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आबिद सरवर खोखर ने भावल नगर रोड के करीब शजरकारी मुहिम का आगाज किया। मुहिम की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोखर ने की। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाकर माहौल दोस्त सरगर्मियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने भी जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया और शजरकारी के अमल में भरपूर दिलचस्पी दिखाई। शिरकत करने वाले बच्चों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, दरख्तों की अहमियत और आलूदगी से निपटने के हवाले से मुख्तलिफ शोबों में मुख्तसर ब्रीफिंग दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, वजीर आला पंजाब की हिदायत पर पूरे पंजाब में शजरकारी मुहिम तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। आने वाली नस्लों के लिए साफ, सरसब्ज और सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सकेगा। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो सिर्फ पौधे लगाने तक महदूद न रहें बल्कि इनकी देखभाल को भी अपनी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि दरख्त मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ग्रीन पंजाब मुहिम में आवाम का ताउन इंतहाई ज़रूरी है और इंतजामिया हर सतह पर माहौल दोस्त इक़दामात को फरोग दे रही है। और अब खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से। हैदराबाद स्टेशन रोड पर जगह जगह सड़क पर गंदा और बदबूदार पानी कई माह से मौजूद है, लेकिन इंतजामिया की नाअहली के बायस पानी निकाला नहीं जा सका। शहरियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन से मुल्क भर के मुसाफिर इस सड़क से गुजरते हैं, आने वाले जाने को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनका इंतजामिया से मुतालबा है जल्द अज जल्द स्टेशन रोड से सेवरेज का गंदा और बदबूदार पानी निकालें। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम काजी से। जी वसीम काजी, आगाह कीजिएगा। स्टेशन रोड से शहर को जाने वाली सड़क पानी से भरी हुई है, गंदे पानी से। निकासी आपका कोई इंतज़ाम नहीं है। लोगों ने यहाँ हुकूमत से मुतालबा किया, ये कब से भर रहा है, क्या कहना चाहोगे? ये हर दूसरे दिन का सवाल है कि एक दिन का काम नहीं है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन पानी भर जाता है। अगर बल्दिया को हम 5-7 हज़ार रुपये देते हैं तो वो पानी निकलवा देती है, वरना दूसरे तीसरे दिन फिर पानी भर जाता है। क्या हाल है क्या नहीं है, हर आदमी अपने नंबर बनाने के चक्कर में बड़ा कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये पानी भरा हुआ है, क्या कहोगे, कब से भरा हुआ है? भाईजान, ये एक तो हमारा हैदराबाद शहर और मेन स्टेशन हैदराबाद रेलवे स्टेशन, यहाँ का तो रोड ऐसा होना चाहिए कि सफाई सुथराई, क्योंकि हर किस्म का लोग आता है, अच्छा बुरा ऑफिसर सब आते हैं, लेकिन यहाँ पे आए दिन जो ये पानी जो है ये कोई इंतजामिया यहाँ पे किसी देखने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। स्टेशन पे ये हाल है, बाकी शहर का क्या हाल होगा। बाकी हमारी तो आर्मी चीफ साहब से मुतालबा है कि उनके दिल में डाले कि पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, कि इसको खुदा के लिए जो है इसका कुछ सोचें, इसके बारे में कुछ सोचें। स्टेशन रोड से जो सड़क शहर को मिलाती है ये मुकम्मल पानी में डूबी है। यहाँ इन लोगों का कहना है कि पानी जो है महीनों से भरा हुआ है, जो ख़त्म होने में नहीं आता। हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि मेन सड़क है, स्टेशन रोड पे कई जगह के मुसाफिर आते हैं जो इसी रोड से गुजरते हैं, तो बराए करम इसको जो है इस पानी को जल्द से जल्द निकलवाया जाए ताकि शहरी सुकून का सांस ले सके। जी। कहरोड़ पक्के में तंजीमी इंतखाबात मुकम्मल हो गए, जिनमें अहमद उस्मान मजहर चुगताई सदर,
मोहम्मद नवाज कम्बोह जनरल सेक्रेटरी और मोहम्मद असगर रहमानी को सीनियर नायब सदर मुंतखब किया गया। शहर के समाजी और कारोबारी हलकों ने नई क़यादत से तंजीम की बेहतरी और खिदमात में इजाफे की उम्मीद जाहिर की। नौ मुंतखब सदर अहमद उस्मान मजहर चुगताई और सीनियर नायब सदर असगर रहमानी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि हम पर एतमाद करने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और साथियों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम अहद करते हैं तंजीम की बेहतरी, पेशेवराना उमूर में शफाफियत, मेंबरान के मसाइल के फौरी हल और दफ्तर के मामलात को जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुनज़्ज़म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और अब आपको बताएंगे, सिटी ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने झंग मोड़ पर अपनी निगरानी में मरकजी शाहराहों की सफाई और वॉशिंग के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने दरिया खान और हॉस्पिटल रोड पर सुथरा पंजाब के तहत जारी क्लीन ऑपरेशन का मुआयना किया और दिलकशा बाग का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ का झंग मोड़ पर सफाई सुथराई और दिलकशा बाग के विजिट पर मौके पर मुतालिका जिम्मेदारान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि शहर को मजीद खूबसूरत, साफ सुथरा और जाज़िब नजर बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम भरपूर अंदाज में जारी रखें। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने दिलकशा बाग का दौरा किया। इन्होंने बाग की हालत, सफाई, देखभाल और शहरियों के लिए तफरीही सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। इन्होंने बाग में पौधों, लॉन, वॉकवेज, स्ट्रीट लाइट्स और सिटिंग एरियाज की मरम्मत और बेहतरी के हवाले से हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर मौजूद अमले को हिदायत की कि दिलकशा बाग शहर के अहम तफरीही मकामात में से एक है। बाग की सफाई सुथराई और इंतजामी अमूर के हवाले से बेहतरी पर खसूसी तवज्जो मरकूज रखी जाए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे कुसूर से। कुसूर में सुथरा पंजाब के दर्जनों वर्कर्स कई माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। घरों में फाके पड़ गए, चूल्हे ठंडे पड़ गए। वर्कर्स का कहना है कि तनख्वाहें ना मिलने के बायस अहले खाना को 2 वक्त की रोटी तक फराहम करना मुश्किल हो गया है। तनख्वाहों की आदम अदायगी पर सुथरा पंजाब के मुलाजमीन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। वर्कर्स ने वाज़ेह किया कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो काम पर वापस नहीं आएंगे, जिसके बायस शहर में सफाई का निज़ाम मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है। एहतजाजी मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सियासी रहनुमाओं का कहना है कि मुल्क कौम की बेहतरी के लिए जो भी आईनी तरमीम आएगी हम इसको फुल सपोर्ट करेंगे। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पड़ोसी ममालिक हमसे आगे चले गए हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं राना मोहम्मद नसीर। जी राना, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त सूबाई मिनिस्टर चौधरी शाफे हुसैन मौजूद हैं। उनसे मुल्की सियासी और इंतजामी सूरत हाल के अलावा हम गुजरात के मौजू पर भी बात करेंगे। जो साहब 26वीं तरमीम आई, 27वीं तरमीम आई, अब 28वीं में आपकी हुकूमत क्या करने जा रही है? क्या उसमें भी अदारों को, अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या नीचे भी प्रोग्राम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने सवाल किया, ये जो तरमीम के हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट में आ रही है, तो मैं कहूँगा कि तरमीम जो है हम उसको फुल सपोर्ट करेंगे। जो भी तरमीम कौम और मुल्क की बेहतरी के लिए होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। और आप ये देखेंगे हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वो हमसे काफ़ी आगे मेरे ख्याल में कुछ चीज़ों में चले गए हुए हैं। तो हमें भी जो है अब जो है फैसले करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी जिसमें मुल्क और कौम के लिए बेहतरी हो। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उस हर फैसले को सपोर्ट करेगी जो पाकिस्तान अवाम और मुल्क और पाकिस्तान की सलामती के लिए जो फैसला होएगा वो हमेशा जो कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको बेहतर तरीके से फाल किया जाएगा। और इन प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ में जो मेंबर सही तरह एक्टिव नहीं है उस मेंबर को चेंज कर देंगे। जी बिल्कुल, चौधरी शाफे हुसैन साहब का कहना है कि अवाम के रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाएंगे। अवाम को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ देना, इंसाफ फराहम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जी
अब आपको बताएंगे बहावलपुर में निजी अस्पताल से नौमौलूद बच्चा अगवा कर लिया गया। आपको बताते चलें खानका शरीफ में निजी अस्पताल में डोंगा बोंगा की रिहायशी खातून के बच्चे का जन्म हुआ। नौमौलूद बच्चे को चेकअप का बहाना बनाकर अमला के रूप में खातून बच्चे के ले उड़ी। बच्चा वापस ना आने पर अस्पताल से राबता किया तो अगवा का इंकशाफ हुआ। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक नामालूम खवातीन रिक्शे में बच्चा लेकर फरार हो गई। पुलिस ने मुखफी के वालिद आमिर हुसैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में खातून को बच्चा रिक्शे में ले जाते हुए देखा जा सकता है। 2 रोज गुजरने के बावजूद पुलिस ताहाल मुल्जिमान का पता ना लगा सकी। और अब खबर शामिल करेंगे पतौकी कमीशन लाहौर का हबीबाबाद में सफाई और तजावुजात की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सफाई को अवलीन तरजीह देते हुए कमीशन लाहौर डिवीजन मरियम खान ने हबीबाबाद तहसील पतौकी जिला कसूर का दौरा किया। सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई के इंतजामात और इलाके में तजावुजात की मजमूई सूरत हाल का मुआयना किया गया। इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली, असिस्टेंट कमिश्नर पतौकी रहमान लोधी, म्यूनिसिपल कमेटी और LWMC का अमला मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर ने मरकजी बाजार, सड़कों और गलियों में सफाई सुथराई, कचरे की बर वक्त उठान, सड़कों पर पानी के छिड़काव और तजावुजात की सूरत हाल का जायजा लेते हुए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक सफाई को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। शहरियों को साफ, मुनज़्ज़म और खुला माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुताल्लिका महकमा सफाई के तसलसल और तजावुजात से पाक माहौल को बरकरार रखने के लिए अपनी कारकर्दगी बेहतर से बेहतर बनाएं। अब आपको बताएंगे DPO सियालकोट फैसल शहजाद और DSP सदर सर्कल इरफान सईद की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना हेडमराला शोएब की मनशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। मशहूर जमाना मनशियात फरोश गिरफ्तार, मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स बरामद कर ली गई। SHO थाना हेडमराला मोहम्मद शोएब ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मशहूर जमाना मनशियात फरोश बाबर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम अरसा दराज से मनशियात फरोशी का धंधा करता था। और अब खबर शामिल करेंगे फिरोजवाला से। फिरोजवाला में मामूली तल्ख कलामी पर डंडों सोटों के साथ फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। फिरोजवाला में मामूली बात के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में खूनी तसादम हुआ। तसादम के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दोनों ग्रुपों में डंडों और सरेआम फायरिंग की मोबाइल वीडियो मंजर आम पर आ गई है। मोबाइल वीडियो में देखा जा सकता है एक पार्टी की जानिब से डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल और दूसरी पार्टी की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग से जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद के बाद लाहौर न्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। थाना कोट अब्दुल मालिक पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान की तलाशी शुरू कर दी। खबर शामिल करेंगे कबूला शरीफ के इलाके चौक मरले पाकपतन रोड पर गुज़िश्ता रोज 2 ट्रैफिक हादसात में एक ख्वाजा सरा समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। गुज़िश्ता रात कबूला शरीफ में पहला ट्रैफिक हादसा पाकपतन रोड चौक मरले में हुआ, जहां एक गाड़ी ने कई रेहड़ी बानों और मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, जिससे मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हुए। एक शख्स जख्मियों को ताब ना लाते हुए अस्पताल में जाँ बहक हो गया। दूसरा ट्रैफिक हादसा रात गए पाकपतन रोड पर चौक काले पठान में पेश आया। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार कार और वजन से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली के तसादुम में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कच्चा रुझान में पुलिस ने इमरानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन करके बदनाम जमाना डाकू हमजा इमरानी को हलाक कर दिया। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 डाकू शदीद जख्मी हालत में फरार हो गए। हलाक डाकू अगवा बराए तावान समेत पुलिस की मुतादिद संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब था। ऑपरेशन में गिरफ्तार डाकू खिलू वल्द आदिल को इंकशाफ समेत गिरफ्तार कर लिया गया। DPO फारूक अमजद के मुताबिक पुलिस की जानिब से डाकू के ठिकानों को घेरे में लिया हुआ है। पुलिस और डाकू के माबैन शदीद फायरिंग का तबादला जारी है।
अब आपको बताएंगे डेरा गाजी खान के हलका NA 185 में ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन हल्का NA 185 के उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून सरदार महमूद कादर लगारी ने दरबार कादरिया चौक पर जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह 23 तारीख को मुस्लिम लीग नून की जीत होगी। उन्होंने शेख राशिद कादरी की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले जलसा पर कहा कि मैं इन कारकुन को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने शानदार इस्तकबाल किया और एक बहुत बड़ा जलसे का इनाकाद किया। आपके नारों की गूंज में दावत देने लगा हूं इंशाअल्लाह MNA महमूद कादर खान लगारी जबरदस्त तालियों में पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आज देखो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हमारी पार्टी के कैद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनका साया हमारे ऊपर कायम रखे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मुस्लिम लीग वापस आ गई है, मुस्लिम लीग वापस आ गई है, मुस्लिम लीग नून वापस आ गई है और इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख का दिन इंशाअल्लाह फतह का दिन होगा। इस मौका पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, डेरा गाजी खान। और अब खबर शामिल करेंगे। सर्कल खारियां पुलिस की मनशियात फरोशों और नाजायज असलहा बरदारों के खिलाफ दबंग कार्रवाई जारी है। DSP सर्कल खारियां शाहिद महमूद की जेर निगरानी SHO थाना सदर खारियां इंस्पेक्टर तौकीर अल हसन ने अपनी पुलिस टीम के हमरा मनशियात फरोशों और नाजायज असलहा बरदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। SHO थाना गलियाना पुलिस ने मुलजिम महमूद असलम को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत जिला कौंसिल बार हर कसूर में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पार्लियामेंटेरियन के अलावा किसानों ने भरपूर शिरकत की। वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने खुश नसीबों में ट्रैक्टर की चाबियां तकसीम की। कसूर से नईम इकबाल की ये रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत जिला कौंसिल हाल कसूर में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान, मेंबर सूबाई असम्बली एहसन रजा खान के अलावा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की नुमाइंदगी करते हुए इनके छोटे भाई मलिक इजाज अहमद खान ने खुसूसी शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के मुताबिक ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में 6200 उम्मीदवारों ने कुरानंदाजी में हिस्सा लिया, जिनमें से 287 खुश नसीबों के नाम ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में सामने आए। किसान वज़ीर आला पंजाब के इस इकदाम से बहुत खुश दिखाई दिए। मोहतरमा मरियम नवाज साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्हें किसानों को जनाब ट्रैक्टर दिते ने माशाअल्लाह 10 लाख सबसिडी थे जिनके नाल इन्होंने काफी माली मुआवनत हासिल हो जाएगी। वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान ने वज़ीर आला पंजाब के किसानों के लिए सब्सिडी इकदाम की तारीफ करते और किसानों के लिए हुकूमत पंजाब की इस काविश को सराहते हुए कहा, मैं समझता हूँ इस सारी स्कीम का सेहरा जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा को जाता है और 262 के करीब जो ट्रैक्टर है वो इस दफ़ा जो कुरानंदाजी हुई उसमें उन खुश नसीबों को जिनके कुरानंदाजी में नाम निकले हैं उन लोगों को आज ट्रैक्टर यहाँ पे दिए जाएंगे। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में किसानों को 1 अरब 32 करोड़ रुपए के कर्जा जात दिए गए, जिनमें से 90% की रिकवरी होना एक हौसला अफजा बात है। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज कसूर। और अब आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के अहकामात की रोशनी में थाना 20 सेक्शन पुलिस की जानिब से गैस सिलेंडर की गैर कानूनी और गैर महफूज दुकानों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। लतीफाबाद नंबर 6 में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक दुकान पर छापा मारकर तमाम मौजूदा सिलेंडर जब्त कर लिए। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद इमरान खान।
डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के अहकामात के मुताबिक थाना बी सेक्शन पुलिस की जानिब से गैस सिलेंडर्स की गैर कानूनी व गैर महफूज दुकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। लतीफाबाद नंबर 6 में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक दुकान पर छापा मार कर तमाम मौजूदा सिलेंडर जब्त कर लिए। LPG सिलेंडर जो रखे हैं ये जाहिर बात है कि आबादी है, इधर ये खतरे की घंटी है, इसी वजह से डीसी साहब ने और एसपी साहब ने एक्शन लिया है। इस पे खैर इनके साथ कोऑपरेट करने का कहा है, फौरन सील कर रहे हैं इसको और फौरन इनके सिलेंडर उठाकर हमने अपने जब्त में लिया। कार्रवाई SHO थाना 20 सेक्शन न्याज पवन की क़यादत में की गई। इस मौके पर SHO का कहना था कि आवाम के जानो माल का तहफ्फुज हमारी अव्वलीन तरजीह है। गैर महफूज सिलेंडर्स दुकानें खतरनाक हादसात का बाइस बनती हैं, इसलिए उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। SOP में लिखा हुआ है, क्लियर है कि भाई ये सन्नाटे की जगह हो, सुनसान इलाका हो, ये तो कंजस इलाका है, नादरा ऑफिस सामने रोड पड़ा। अगर अल्लाह ना करे कि यहाँ से कोई सिलेंडर फटेगा तो उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकेगा। हजारों के लोग तादाद में लोग नादरा ऑफिस में आते हैं, ये तो किसी सूरत में अलाउ नहीं होना चाहिए। अभी मैंने एसपी साहब को रिक्वेस्ट की और एसपी साहब ने सिविल डिफेंस का असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को भेज दिया है अपने टीम के साथ। अपना वो एंटी इंक्रोचमेंट वाले भी आ गए हैं, इसको सामान लेके जो कंसर्न वाले के उस पर FIR करेंगे। पुलिस का कहना था कि आइंदा दिनों में भी शहर भर में गैर कानूनी, बगैर लाइसेंस और हिफाजती इकदामात के बगैर चलने वाले सिलेंडर्स दुकानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। खबर देंगे योद्धा माइंस नहर का पानी कुंडियारों की कच्ची आबादी के घरों, गलियों और मस्जिद में दाखिल हो गया। आपको बताते चलें, कुंडियारों कच्ची आबादी के रिहायशियों ने एरीगेशन अमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा, हम सख्त परेशान हैं, एरीगेशन के अमलदार गायब हैं। JUI और ऑल पार्टीज अलायंस के रहनुमा मौलाना मोहम्मद रमजान, हाजी खान रिंद और दीगर ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में हमने मेहनत मजदूरी करके ये घर तामीर के लिए हैं। रोज रोज नहर का पानी टूट कर हमारे घरों को डुबोता रहता है, मगर जालिम एरीगेशन अमलदारों को कोई रहम नहीं आता। कई बार एहतजाज कर चुके हैं, मगर अब मसला हल ना हुआ तो हम अदालत जाएंगे। और अब खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक और DPO सियालकोट फैसल शहजाद की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना अगोकी की नदीम अशरफ का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। एक खवातीन समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद करके 4 मुलजमान को खिलाफ अलहदा मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। DPO सियालकोट फैसल शहजाद और DSP सदर सर्कल ऑफिसर इरफान सईद की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना अगोकी नदीम अशरफ ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक खवातीन समेत 4 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजमान अरसा दराज से मनशियात फरोशी का धंधा करते थे और नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे। SHO थाना अगोकी नदीम अशरफ का कहना था कि मनशियात एक लानत है, इनके सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और आपको मजीद बताएंगे, कराची ग्रैंड अलायंस की जानिब से कराची जरगे का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची, सियासी, समाजी और ताजिर रहनुमाओं ने शिरकत की। कराची जरगे का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची ग्रैंड अलायंस की जानिब से हाजी अब्दुल रज़ाक अगर की सदारत में मकामी हाल में कराची जरगे का इनाकाद किया गया। कराची जरगे से खिताब में साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा का कहना था कि एक चीज़ जिसके लिए कराची मशहूर था वो इसकी तालीम थी, जो हमने दाखिले दफ्तर कर दी। हमने क्लाशनकोफ उठाई, पता नहीं वो भी उठाई नहीं उठाई, किसी ने पकड़ा दी हमारे हाथ में। हमने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। अच्छा, पढ़ना लिखने का मतलब MA BA नहीं होता। पढ़ने लिखने का मतलब हो तहकीक होता है। पढ़ने लिखने का मतलब होता है अपने माहौल के आसपास जायजा लेना और उसके जो मसाइल हैं उनका हल तलाश करना। कराची ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन असलम खान ने अपने खिताब में कहा कि कराची को इंतजामी यूनिट बनाया जाए। कराची को अब हर हाल में हम एक इंतजामी यूनिट बनाना चाहते हैं। जब लोग ये कहते हैं कि जमीन
सिंध हमारी माँ है। हम कहते हैं कि सिंध हमारी भी माँ है, लेकिन एक माँ के दो बच्चों को एक साथ एक घर में हमेशा नहीं रह सकते, अलग होना पड़ता है। हम ये कहते हैं कि माँ के दो बच्चों को जब एक बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा तो दूसरा बच्चा अपने पानी और अपने उसके लिए कहेगा कि मुझे दूसरी जगह दो। चेयरमैन आबाद हुसैन बख्शी ने अपने खिताब में कहा कि कराची के लिए बात करना तवील जंग है और कराची के लिए सोचना, कराची के हक में बात करना, ये मैं समझता हूँ कि आप सबके लिए ये बहुत अच्छी बात है और ये आगाज़ है, ये एक लंबे सफ़र का आगाज़ है। देखिए, कराची के हक के लिए, कराची के राइट्स के लिए ये एक तवील जंग है और ये तवील जंग कोई एक आदमी, एक इदारा, एक कौमियत नहीं लड़ सकती, ये हम सब ने मिलकर लड़ना पड़ेगी। कराची ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन असलम खान ने जरगे के इख्तिताम पर करारदाद पेश की कि फौरी तौर पर शहर कराची से सिस्टम का खात्मा किया जाए। आप सब आइन की शिक 140A के तहत फौरी तौर पर अख्तियारात शहरी गवर्नमेंट को दिए जाएं, मुकामी पुलिस होनी चाहिए, मंजूर है। ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन असलम खान ने जरगे के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ से मुतालबा किया कि कराची से सिस्टम का खात्मा किया जाए। तो हम आर्मी चीफ से ये मुतालबा करते हैं कि उन लोगों को भी देखें जो पाकिस्तान के खिलाफ सिंध में रहते हुए साजिशें कर रहे हैं, उन लोगों को भी देखें जो आज पूरे सिंध को क्या कराची को बेच दिया है उन्होंने, उन लोगों की करप्शन के क्या इन लोगों को एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मालूम है कि कितनी करप्शन हो रही है। यानी सिस्टम जो है वो जो कुछ कर रहा है, आर्मी चीफ या कह कर गए हैं कि सिस्टम को खत्म किया जाए, लेकिन ये सिस्टम क्यों नहीं खत्म हो रहा, मैं खुद हैरान और परेशान हूँ। जरगे से दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर महफूजुन नबी, सैयद अफजल हमीद, डॉक्टर इमरान, सैयद यूसुफ इमाम और दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन अयान के साथ जुल्फ़कार पीरज़ादा, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। इसी के साथ शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें मेट्रो 1 न्यूज़।